देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं हमारे साइंस का सेकंड वीडियो। हमारे साइंस के फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कवर किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मैटर की क्लासिफिकेशन दो बेस पे किए जाते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड ऑन द बेस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। So on the base of its physical properties, the matter is classified into three types. These three types are solids, liquid and gases. And on the basis of its chemical properties, matter is classified into again three types: elements, compounds and mixtures. So the topic of classification of matter based on its chemical properties will be studied in the next chapter, in chapter number 2. In this chapter, in chapter number 1, we have to study classification of matter based on its physical properties. So, the three types of matter which is classified on its physical properties are solids, liquids and gases. Example of solids are sugar, eraser, marker, board. Water, the example of liquid, water and juice. The example of gas are oxygen, O2, CO2, nitrogen and air, which is a mixture of all these three gases and many other gases. So what does it mean? Physical properties and chemical properties. So physical properties are that type of properties which we can identify by seeing the thing, and the chemical properties are that properties which we have to identify by performing chemical activities, chemical reactions in the laboratory, in the science laboratory. So for example, this marker, consider this marker. By seeing this marker, you can consider that this is a solid. But if the chemical properties, if we consider chemical properties, then we have to do science experiments like elements, compounds and mixture, which is a type of matter based on its chemical properties. If we have to choose one between elements, compounds and mixture, take anything, and if we are given a task that to choose that whether this thing is an element, compound and mixture, then we have to perform a chemical activity, chemical reaction, like milk. If we have given a milk, so on the basis of physical properties, matter is classified into solids, liquids and gases. सॉलिड्स में सुगर, इरेजर, मार्कर, बोर्ड. लिक्विड, वाटर, जूस एंड गैस O2, CO2, N2, air, which is a mixture of all the gases. So our topic today is that we have to study about solid, liquid and gases and the properties of solids, liquids and gases. So let's start our today's topic. But before starting this topic, which is our main topic, we have to discuss an subsidiary topic which was to be discussed in the previous lecture, but I can't discuss that thing because of some reason. So that thing is about the experiment of Robert Brown and scientist, and the experiment name is the pollen grain experiment by Robert Brown, which Robert Brown conducted in 1827. So in 1827, he conducted the pollen grain experiment. So basically, जो pollen grain experiment है, वो pollen grain experiment क्या है? So he suspended pollen grains into water. उन्होंने pollen grains को water में डाला. pollen grains को water में डालने के बाद उन्होंने observe किया. He observed that the pollen grains after going into water are moving in zigzag way, in a haphazard way, and because of that haphazard way,
because of that haphazard way, the pollen grains are continuously moving. So he concluded that the question will arise in your mind that why these pollen grains is moving in zigzag way. Why is it not in rest position? It is because of that when he suspended pollen grains in water, then the particles of water, which are very very small, they are so small that you can't see them even through a microscope. So the particles of water started hitting the particles of pollen grain continuously. So consider this is a particle of pollen grain and this is a particle of water. So in all directions, in that direction, in this direction, also in this direction, they started hitting it. And because of continuous hitting, the pollen grain, ये जो pollen grain का particle है वो zigzag वे में ऐसे मूव करने लगा. और इसके मूविंग के चलते ही ये रॉबर्ट ब्राउन को, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन थे, उनको ये दिखा. So after seeing that experiment, after conducting that experiment, he concluded that the pollen grains, that the particles of pollen grains are continuously hitting by the particles of water. This proves that the particles of matter are continuously moving. And secondly, after seeing through a microscope, he saw that the particles of water are not visible even through a microscope. So by this experiment, he proved that the particles of matter are very very small. So after a first part of his experiment, he proved that the particles of matter are continuously moving, and after second part of his experiment, he proved that the particles of matter are very very small. So this process of Robert Brown suspending pollen grains into water and concluding these two properties of matter is known as Brownian motion. Brownian motion means the Brownian उनके नाम पे हो गया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम था, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इस नाम पे. और मोशन जो ये हैphazard मोशन pollen grain का हुआ है, उसी की वजह से ये ब्राउनियन मोशन ही कहा गया. अब आपको नाउ Brownian motion can also be seen in gases as well. So it is I am giving you a day-to-day life example. In a dark room, when you enter a dark room, and only one beam of sunlight is coming through any hole, and मतलब किसी भी रोशनदान से अगर वो one beam of sunlight आ रही है, so if you see the path of sunlight, you will observe that in the path of sunlight many dust particles are revolving around it. You will see that. This is also an example of pollen grain, because the dust particles are continuously hitting by some particles, and therefore they are moving in a haphazard, in zigzag way, like that the pollen grain is moving in water. So it can also be the particles of air are hitting the particles of dust. So it can also be expressed in gases that which is air, which is a mixture of gases. So let's start our today's topic. So this is a subsidiary topic about Brownian motion. I have taught you, मतलब मैंने आपको ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, ये तो पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं पिछले वीडियो में. लेकिन ये ब्राउनियन मोशन वाला एक्सपेरिमेंट एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, और ये तो मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर हो पाए. तो हमने भी दो प्रॉपर्टीज का प्रूफ एक साथ देखा. वो प्रूफ क्या था? तो रॉबर्ट ब्राउन एक्सपेरिमेंट में वो पहली प्रॉपर्टी थी दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, एंड सेकंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो अब हम अपना जो मेन टॉपिक है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. So I am erasing it.
So let's start. So before studying the properties of solids, liquids and gases, we have to study about some terms like rigidity and fluidity. So what is rigidity and what is fluidity? First is rigidity. We have to understand. So let's rigid and fluid. So in rigid, solids came, and in fluids in came liquids and gases. So basically what is that? Rigidity. ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, don't mind. So rigidity एक extra facts हैं, from interesting facts we have. Rigidity is what? It is unseparable. The rigid thing is unbreakable. It's not unbreakable, it's unflexible. तो सॉलिड्स है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड है मार्कर मेरे हाथ में. तो ये मार्कर को आप कितना भी करें, इसे आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, इसे आप सिर्फ बढ़ा नहीं सकते हैं सॉलिड्स में. एग्जांपल और फ्लूइडिटी, और दे कांट फ्लो इजीली, दे simply don't flow, not easily, they don't flow. But in fluid, they require a vessel to keep, because any liquid and any gas, you can't just do without any vessel. Liquids, let's consider water. अगर पानी को भी रखना है तो आपको किसी बर्तन में रखना होगा, वेसल में. और गैस को भी रखना है तो आपको किसी बर्तन में रखना होगा, उसको तो कंटेनर में रखना पड़ता है, उसको सील पैक करके, तो वो हवा में मिक्स हो जाएगा. So liquids and gases, they require a vessel to keep it. They don't require a vessel, but it is inflexible. And because of this rigidity is specific property of solid. Because of its rigidity, no outer force can change its shape. That's why solids have fixed shape. Because solids are fixed shape, because no outer force can change it. Because अगर ये इस पे मैं अपना मस्कुलर फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है. हाँ, अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ दे मार के, तो ये शेप चेंज नहीं होगा, ये दो पार्ट में हो जाएगा, इसका शेप नहीं बदलेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. लेकिन ऐसे मस्कुलर फोर्स लगाने से इसका शेप चेंज नहीं होगा. वही लिक्विड है, लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में रखेंगे, अगर कटोरा में रखेंगे तो उस कटोरा का शेप ले लेगा. इफ यू कीप इट जग, वो जग का शेप ले लेगा. गैस का भी वही है, गैस को आप थोड़ा सा रखेंगे तो पूरा फैल जाता है. तो ड्यू टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, सॉलिड्स आर अनब्रेकेबल. अनब्रेकेबल मीन्स इनफ्लेक्सिबल. ब्रेकेबल का मतलब कैसे, आप इसे मस्कुलर तोड़ नहीं सकते हैं ऐसे, आप इसको ऐसे, आप उस पे हैमर से करना होगा ये मार्कर पर. ये सॉलिड्स की रिजिडिटी है. और ये जो फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी, ये भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स एंड गैसेस में, जो सॉलिड्स पोजेस नहीं करते हैं. इसकी वजह से ये फ्लो करते हैं, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दे फ्लो इजीली. लिक्विड्स आल्सो एंड गैसेस आल्सो. और ये इनकी एक प्रॉपर्टी भी है, जो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. ये इनकी प्रॉपर्टी भी कि दे कैन फ्लो इजीली. और उसका एक और रीजन है इनके पार्टिकल्स थ्योरी की चलती है, इनके पार्टिकल्स फ्लोज फार क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी. सो अब नाउ लेट्स वी हैव टू स्टार्ट आवर मेन टॉपिक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. So now we have to study. We will study one by one about solids, liquids, and gases. So we have to first start solids.
this is the particle structure of solids. So I will draw one by one all the particle structures of solids, liquids and gases by explaining their properties. So we have to first know about the property of solids. So the first property of solids, which we know easily, are the solids have a fixed shape and fixed volume. So I have to write here that first, solids have fixed shape and fixed volume. The reason of their fixed shape and fixed volume is related to their particle theory. They are particles. So the reason I will explain that. Solids have fixed shape because the position of the particles of solids are fixed. And these particles will remain at this position. It will not travel along the place of these particles. मतलब ये इस पार्टिकल के प्लेस पे नहीं आएगा, ये इसी यहीं पे रहेगा. इसकी पोजीशन फिक्स है, अपने अपने सबकी पोजीशन फिक्स, और वो फिक्स की वजह से उनका शेप चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहेगी इन रेस्ट पोजीशन, इसलिए उनका शेप सेम रहता है. So the position of their particles are fixed. That's why the solids have fixed shape. And solids have also fixed volume. So they have also fixed volume. The reason of that is the spaces between their particles is also fixed. Means that ये जो दो particles हैं, ये particles और ये particles, इनके बीच की जो यहाँ पे स्पेस होगी, यहाँ पे तो अभी दिख नहीं रहा है, आपको नेग्लिजिबल दिखेगा. ये रियल इमेज नहीं है. अगर माइक्रोस्कोपिक इमेज से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लिजिबल स्पेस होता है. उस स्पेस, वो स्पेस फिक्स, मतलब इतना ही स्पेस हर पार्टिकल्स के बीच में रहेगा. ऐसा नहीं कि इसमें कम है, इसमें ज्यादा, फिर इसमें कम, इसमें बहुत कम, इसमें बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं. हर पार्टिकल्स के जो स्पेस है वो फिक्स रहते हैं, और इनकी स्पेस फिक्स रहने के कारण दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. Solids have fixed shape and fixed volume. It is their first property. Their second property is that solids have high densities. Solids have high densities. They are heavy. Solids generally heavy होते हैं liquids और gases comparison में. The reason behind that is also related to their particle theory. They are particles. The particles of solids are closely interlinked to each other. They are not far away from each other. And just because of that, the particles of solids are closely related to each other. If you look at this picture, in this picture you will see that the particles of solids are closely related to each other, and that's why this picture is looking dense. The particles of solids are looking dense because of this density, because of the density of their particles as shown in this picture, in this diagram. So that theory also applies on solids. The particle theory of solids is also applied on solids. तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या फनी भी लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स के सॉलिड्स पे अप्लाई होते हैं. तो ये ऐसा तो होता ही है. मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए. कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड्स, ये जो पिक्चर डेंस लग रहा है, ये उनके पार्टिकल्स जो डेंस लग रहे हैं, इनकी इसी डेंसिटी की वजह से, इनके पार्टिकल्स की डेंसिटी, उसी डेंसिटी डेंस होने की वजह से ही ये जो सॉलिड्स होते हैं वो भी डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है. तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज. नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है, they can't be compressed much. Solids can't be compressed much. तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने कही कि they can't be compressed much, इसमें मेरे कहने का मतलब है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपने समझ ली कि इनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होती है. फिक्स्ड शेप इसलिए होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के पोजीशन है वो फिक्स हैं, और फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए होती है क्योंकि जो दो पार्टिकल्स के बीच के जो इनके स्पेस हैं वो स्पेस फिक्स है. इनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है
क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं और इसी की वजह से ये जो पार्टिकल्स ही इनके जो पार्टिकल्स का डायग्राम है वही डेंस दिख रहा है और इसी की वजह से ये डेंसिटी इनकी हाई होती है, दे आर हेवी। अब दे कांट बी कंप्रेस्ड मच, ये कंप्रेस ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को अब दबाना है, ये उनको दबाना है, किसी भी चीज को अगर आपको दबाना है तो उसको दबाने के लिए स्पेस होना चाहिए। जैसे कि अगर ये दोनों, ये एक मार्कर है, ये उसका लीड है, अगर आपको उसको प्रेस करना है तो अब इतना स्पेस होगा तब आप प्रेस करेंगे। अब ये पहले से ही बंद है तो आप इसको प्रेस कैसे करेंगे? क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं, इनके बीच में ये स्पेस होना चाहिए। उसी वही थ्योरी में, क्योंकि विद पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव हार्डली एनी स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो अब वो और स्पेस कहां से लाएंगे अपने आप को कंप्रेस कराने के लिए? इसी की वजह से उनको कंप्रेस हम कर नहीं सकते हैं। दे कांट बी कंप्रेस्ड। ये मच तो मैंने लिख दिया, थोड़ा भी कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, हल्का सा हो सकते हैं वो भी कुछ कुछ। जैसे जो स्पंज होता है, एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी का। तो स्पंज की भी जो एक अलग थ्योरी है स्पंज में कि वो जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है अपने ग्लोब्यूल्स में, उसमें जो स्पेसेस होते हैं, और वो जब उसको स्पंज करते हैं वही एयर बाहर निकलता है, इसी की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। अदरवाइज अगर वो एयर ट्रैप नहीं करता तो वो कंप्रेस करने पे वो बाहर नहीं, तो वो भी कंप्रेस नहीं हो पाता। तो ये इनके थर्ड प्रॉपर्टी है। Now fourth property of solids. इनकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि दे डू नॉट फ्लो, मतलब ये फ्लो नहीं करते हैं, मतलब किसी भी सॉलिड्स को आप बहते हुए नहीं देखेंगे, डू नॉट फ्लो। इसके रीजन भी ये पार्टिकल थ्योरी पे है, हर एक प्रॉपर्टी का रीजन पार्टिकल थ्योरी पर ही है। इसका रीजन ये है कि ये फ्लो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स इज सो मच दैट्स व्हाई दे कांट फ्लो बिकॉज दे आर इनसेपरेबल। अगर किसी चीज को फ्लो करना है उसके पार्टिकल्स को, यानी उसके अंदर के जो मैटर है उसको यहां से, उनके पार्टिकल्स को यहां से अगर यहां फ्लो करना है तो ये पार्टिकल्स को यहां से यहां आना पड़ेगा ना। और ये इतने फिक्स होते हैं इनका पोजीशन, जिसके मैंने पहले बताया कि इनकी पोजीशन फिक्स होती है, और इनके इंटर पार्टिकल फोर्स दे हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये यहां से यहां आ ही नहीं पाते, इसलिए वजह से वो फ्लो नहीं करते हैं। ये मार्कर क्या फ्लो करेगा? कभी ये फ्लो नहीं करेगा ये मार्कर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट जो फोर्थ से रिलेटेड है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका रीजन ये है, इसका रीजन सेम है कि दे आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय देयर इंटरपार्टिकल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांग इंटरपार्टिकल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर अनएबल टू लीव देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस, एंड बिकॉज ऑफ the inability of leaving their respective positions, their particles do not reach to the whole container, and that's why they do not fill their container completely। मतलब ये उनके particles पूरे कंटेनर तक फैले नहीं पाते, इसी वजह से वो पूरे कंटेनर को नहीं भर पाते, तो they do not fill their container completely। तो इनके फिर 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज का जो बेस है वो उनकी पार्टिकल थ्योरी है, और सॉलिड्स लिक्विड गैस में भी इनकी सबकी पार्टिकल थ्योरी पे बेस है।
तो ये हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अब हम स्टडी करते हैं लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो एक जो सॉलिड्स का मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लगा, क्योंकि टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये सॉलिड्स का आप समझ गए तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। सिर्फ पार्टिकल से आपको डिस्टेंस ध्यान रखना है बस, और उससे सब आप समझ में आएंगे। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं। So we have to now study about liquids. So liquids के हम यहाँ पे पार्टिकल डायग्राम बनाते हैं। ये लिक्विड्स के पार्टिकल डायग्राम। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि लिक्विड्स do not have fixed shape but have fixed volume। मतलब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स आर दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास अपना कोई शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, मतलब जिस भी कंटेनर में रखे रहते हैं उसका शेप ले लेते हैं। जैसे कटोरा में रखेंगे तो कटोरा का शेप, जग में जग का शेप, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन ये फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मींस अगर कप में भी रखेंगे तो ये 500 ml ही रहेगा। अगर उस कप में से उस लिक्विड को ट्रांसफर कर देंगे जग में तब भी ये 500 ml ही रहेगा। अगर 500 ml है तो उसको अगर उस जग में से भी आप किसी मग में ट्रांसफर कर देंगे तब ये 500 ml रहेगा, मतलब ये फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब इसका क्या कारण है? ये क्या पार्टिकल थ्योरी से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल है। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ देयर पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, और ये फिक्स नहीं है। इनकी इसी फिक्स नहीं है, इसी की वजह से इनके कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक देयर शेप ऑफ देयर कंटेनर। लेकिन इनका फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पर इनके जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो सेम रहते हैं। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप चेक करें तो इनके स्पेस पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस है, ये भी सेम रहेंगे, यहाँ पे भी सेम रहेंगे, यहाँ पे भी सेम रहेंगे, यहाँ पे भी सेम रहेंगे, और यहाँ पे भी सेम रहेंगे। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं, इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट टेम्परेचर, अगर हम उसको प्लस माइनस करते हैं तो ये स्पेस वेरी हो सकता है। लेकिन अगर एट ए गिवन टेम्परेचर इनके पार्टिकल्स के स्पेस सेम रहते हैं। तो इसलिए फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि आप किसी भी सेम लिक्विड को दो टेम्परेचर पर अलग अलग देख नहीं सकते हैं सेम चीज को। जैसे वाटर को दो वेसल में लेके नहीं, एक ही वेसल के वाटर को, वही पानी को दो अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही टाइम पे तो आप देख नहीं सकते हैं। या तो आप 0 पे देखेंगे, 0 पे तो वो आइस हो जाएगा, मतलब या तो आप 10-20 पे देखेंगे, नहीं तो आप 100 पे देखेंगे। उस गिवन टेम्परेचर पे उनके पार्टिकल्स, उनके जो स्पेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसी की वजह से ये फिक्स्ड वॉल्यूम उनका होता है। अब जो इनका सेकंड प्रॉपर्टी है वो है they have
ये प्रॉपर्टी है, दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। इसका भी रीजन पार्टिकल थ्योरी है, इट इज क्लियरली यू कैन सी दैट, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है ये पार्टिकल्स एक दूसरे से उतने क्लोज रिलेटेड नहीं जितने सॉलिड्स होते हैं, और इसी की वजह से इनकी जो सॉलिड इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड जितनी हाई नहीं होती। हाँ, लेकिन इतने भी दूर नहीं है एकदम लो डेंसिटी, दे हैव मॉडरेट। कुछ लिक्विड्स के कम होते हैं और टू हाई डेंसिटी, कुछ जो गाढ़े टाइप के लिक्विड जैसे होंगे वो उनकी डेंसिटी थोड़ी हाई रहती है, घनत्व। तो यहाँ पे ऐसे, तो दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। थर्ड प्रॉपर्टी, they can't be compressed much. So they can't be compressed much. So why they can't be compressed much? Because the spaces between their particles are not negligible in comparison to solids. They are high in comparison to solids, but they are not so high to be very much compressed. तो इतने भी ज्यादा नहीं है इनके कि ये पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो जाए, और इसी की वजह से थोड़े से कॉम्प्रेस होने पर उतना ज्यादा ये कॉम्प्रेस नहीं हो पाते हैं। तो दे कांट बी कॉम्प्रेस्ड मच। अब जो इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? फोर्थ जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है दे फ्लो इजीली। ये फ्लो इजली, दे फ्लो इजली। इसका रीजन है, अब ये जो दो प्रॉपर्टी है दे फ्लो इजली, और इनकी इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कंटेनर वाली, वो देखिएगा वो क्लोजली इंटरलिंक्ड है और एक कंफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है। अगर इसकी रीजन पूछे तो दे फ्लो इजली, इसका रीजन है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में उतना ज्यादा नहीं होता है, दे आर नॉट सो हाई। और इनके हाई नहीं होने से इनके पार्टिकल्स फिक्स नहीं रह पाते हैं, और इनके फिक्स नहीं रहने से इनके पास फिक्स शेप नहीं होता है। इसी की वजह से ये फ्लो कर देते हैं, आसानी से चल जाते हैं, तो ये इजिली फ्लो कर जाते हैं, वाटर जूस। सो देयर इंटर पार्टिकल फोर्स आर नॉट सो हाई। ओके, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी का रीजन हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी सुनिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका रीजन क्या है? ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली इसलिए फिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो हाई होता है, और इसी हाई होने के कारण इनके जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो हट नहीं पाते हैं, मतलब एक फिक्स रहते हैं, और इसी की वजह से ये उनके जो पार्टिकल्स है पूरे कंटेनर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे आया क्या आया? हियर कम्स द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये मैंने यहाँ पे कहा था कि ये इनके इंटर पार्टिकल फोर्स हाई नहीं होते हैं, यहाँ पे कह रहा हूं हाई होते हैं। ये यहाँ पे बोला था कि फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होते, यहाँ पे बोल रहा है फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। बोल रहा हूँ फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। अब इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, ये समझने की बात ये है कि इनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं ये फेयरली हाई होते हैं। कहने का मतलब ये इतने हाई तो होते हैं कि कंटेनर को कंप्लीटली फिल ना करा पाए और पार्टिकल्स को होल्ड करके रखें, पर इतने हाई भी नहीं होते हैं कि ये फ्लो से बचा ले। सो इन दिस केस द वीक पार्ट, दो पार्ट होते हैं। फेयरली हाई का मतलब कि जो इस केस में आप लिख सकते हैं कि दे आर सो वीक, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, the interparticle force are not so strong, that's why they flow easily। और इस पे रीजन होगा कि the interparticle force are not so weak, इतने भी वीक नहीं होते हैं कि वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कराए। they are fairly high, मतलब क्वाइट हाई है, गुड इनफ, लेकिन एकदम सॉलिड्स की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग एक्सेलेंट नहीं है। so they do not fill their container completely, they flow easily। ये समझ में आया आपको कि ये इतने हाई तो होते हैं, जो इंटरपार्टिकल फोर्स है इतना ज्यादा तो होता है कि ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करने से बचा ले, मतलब बचा क्या ले वो हो नहीं पाता है, पर इतने हाई नहीं होते हैं कि वो फ्लो ना करवा पाए।
दे फ्लो इजीली, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी यहाँ पर। लिक्विड्स की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी जो सॉलिड में पढ़ी थी। अब आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अब बच रहा है लास्ट गैसेस का। जो गैसेस में आपको इतना याद रखना है कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे होते हैं, और इसी के कारण ये सब प्रॉपर्टीज सॉलिड गैसेस की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू सॉलिड्स, एंड लिक्विड्स इज इन मिडिल बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। So let's conclude our last topic of this video, properties of gases, and after that we will end this video and I will tell you about the content of the third video, which topic I'll be going to study in the next topic, next video. I will tell you in the last 2-3 minutes of this video. So let's conclude these videos firstly. So gases. So the first gases, the particle. First property of gases. First property of gases is they do not have fixed volume इसमें कि गैसेस में ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम गैसेस में, और इसका रीजन है कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ देयर पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, सिंपल, एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरीज। वो सेम टेम्परेचर में वेरी कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर अलग टेम्परेचर वेरी करेंगे। सो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसी की वजह से फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होने की वजह से इतना भी अगर गैस इंसेंस स्टिक अगर आप लीड करते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? उसकी वॉल्यूम कम होती है लेकिन दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसी की वजह से वो पूरे रूम में फैल जाता है। उसी तरह थोड़ा सा भी गैस रखेंगे वो पूरे अपने कंटेनर को फिल कर देता है, और इसकी प्रॉपर्टी भी है कि वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी दे हैव लो डेंसिटीज। इनकी लो डेंसिटीज क्यों है? ये सिंपल है, क्योंकि लो डेंसिटी इसलिए है इनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से दूर हैं, द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फार दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दिस द पार्टिकल डायग्राम इज आल्सो नॉट लुकिंग dense. See this, one particle is here, one particle is here, one particle is here, and one particle is here. That's why they have low densities. They are very light. अब सॉलिड्स और एयर वो अगर आप कौन बने, तो एयर अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे हाथ रखकर सॉलिड्स को ऐसे कि मार्कर को पकड़े तो यही भारी लगेगा, या फिर लिक्विड्स को भी ऐसे, तो दे हैव लो डेंसिटीज। तो एग्जैक्टली अपोजिट है, सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम दोनों थे, और दे हैव उनके पास हाई डेंसिटी थी। इसमें ना तो फिक्स्ड शेप है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ना ही हाई डेंसिटी है, इसमें लो डेंसिटी है, और इसमें कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड मच, और ये पार्टिकल थ्योरी से पूरी तरह से, पार्टिकल डायग्राम से पूरी तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि उनके दो पार्टिकल्स, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ between the two particles of the gas is so much, so high, see that it can be very much compressed. उसको आप दबाएंगे, वो इतना स्पेस है इसमें, उसको दबाएंगे तो
बहुत ज्यादा आप उसको दबा सकते हैं, दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड। और इसी कॉम्प्रेशन के चलते जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आप घर में यूज करते हैं, तो एलपीजी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहता है। जब वो जमीन से निकलता है एलपीजी, जब वो फैक्ट्री में, वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में नहीं रहता है, उसको सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके दिया जाता है, क्योंकि दे कैन बी कॉम्प्रेस मच बिकॉज द पार्ट द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस इज सो हाई, दैट्स व्हाई दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड मच। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज दे फ्लो इजीली। ये लिक्विड से भी इजीली फ्लो करते हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पानी गिरा दीजिए और हवा अगर बह रही तो देखें, हवा बहुत जल्दी ट्रेवल करता है वाटर से भी तेज, क्योंकि दे फ्लो इजीली, क्योंकि उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स कुछ रहता ही नहीं है। इतना दूर है, क्या है, नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स है, तो वो अपने मन से जहां चाहे वहां फ्लो कर सकते हैं। दे फ्लो इजीली। इतना स्पेस में इंटर पार्टिकल फोर्स कहां से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे फ्लो इजीली। और फिफ्थ, और ये इसी फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि दे फिल देयर कंटेनर मार्कर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये अपने कंटेनर को पूरी तरह से भरते हैं, और इसका भी रीजन ये है कि इंटर पार्टिकल फोर्स पूरी तरह से नेग्लिजिबल होता है, तो ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, और इसी की वजह से वो पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं। वो कम मात्रा में ही क्यों ना हो, पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। जैसे एग्जांपल एलपीजी। तो ये लिक्विड गैसेस की भी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों के हमने एक ही टाइप्स की, जो कि अलग अलग डिफरेंस करती है, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, और सबको पार्टिकल डायग्राम से और मैंने समझा के जस्टिफाई किया। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस पर। फिर वी विल स्टडी अबाउट द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू स्केल्स। वी विल स्टडी अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ गैसेस, कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इंसेंस स्टिक पूरी तरह फैल जाता है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो वी हैव नाउ स्टडीड अबाउट मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द 2 बेसिस, फिजिकल एंड केमिकल। जो फिजिकल बेसिस पर जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस है, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। अब हम इसके आगे जो मैंने बताया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर सेल्सियस केल्विन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। और इस जो अगर आपने ये इससे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है क्लास 9 साइंस की, तो उस वीडियो को देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम आज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।